Good afternoon, everyone. Thanks for joining us today for StaffCorp's Employee Productivity Monitoring System webinar. I am Vijit, presenting TechMonarch Infocom LLP, a leading provider of managed IT services and IT staff augmentation services. We also provide DevOps, cybersecurity, cyber audits, and system integration services. We take pride in being the trusted provider of several well-known IT brands and products. I am delighted to be the host for this exciting event. Today, we have the privilege of partnering with Atom Security LLC, a Russian vendor of software solution for information security and employee monitoring. We have guest lecturer today for this event. They are from the StaffCorp. They will be demonstrating the whole product. Let's get straight to the point. StaffCorp empowers organizations to optimize workflow, improve time management, and identifying the growth opportunities within their organizations. It ensures compliance with data protection regulations while promoting a respectful work environment. Now, let me introduce you to our CEO, Mr. Suresh Kalal, who will share some insight for today's event, and then we can continue. So, So thank you, Vijit, for the introduction and organizing these beautiful events. And thank you, everyone, on behalf of TechMonarch to joining us on this webinar. It is really be a pleasure to be part of this webinar today. So at TechMonarch, our mission is to provide an innovative solution to business like yours, and this is one of that. We understand the challenges organization face in managing employee productivity while managing the data security and the employee privacy altogether. So that is why we have carefully selected the StaffCorp as a product in our portfolio, and it has a great potential, which help the company like yours to managing the employee productivity and the data security altogether. StaffCorp goes beyond traditional monitoring offering tools. This is not just the screenshot monitoring system and all, offering a comprehensive solution that enables you to make informed decision based on the real-time data insights. Where I would like to emphasize here is that this tool is truly powerful and it comes to a monitoring, but you can choose it with your consideration for your employee basic rights in a mind, based on your company need about productivity, data security, and the company culture. You can use this great tool to boost productivity and manage security and have a complete visibility with your employee or your data security and employee monitoring need. I'm sure the team will going to cover all the product feature and advantage in this webinar. So I'm not taking much of your time. Thank you once again for joining this event, and let's make the most of out of this webinar. And I'm certain you will amaze by the capabilities of the StaffCorp. Thank you once again, and over to you, Vijit. thank you, sir, for sharing your insight with us. Without further delay, let me introduce you with our speakers for today's event, Mr. Ishan Prakash, and our StaffCorp Indian representative. And from Russia, we have Mr. Anton Bogosh, StaffCorp's International Sales Manager. Let me hand over the full floor to the Mr. Anton. Yes, thank you. All right, my name is Anton Bogush. I am in charge of international sales and marketing in Atom Security LLC. So the company is called Atom Security. We are based in Russia, in Asian part of Russia, in Siberia. And the company was established back in 2001. So since that time, we have been
developing solutions for employee monitoring, information security, and remote administration. So basically, it all started with a simple monitoring tool. Then for the almost 2 decades, our developers collected the experience, the feedback from the customers, and it eventually progressed and was developed into what we have now, the main flagship solution called StaffCop Enterprise. We provide a free period during which you can test the powerful capabilities of StaffCop, and during this time period, sometimes you see the value of the product, because during this free trial you can catch some incidents. So in general, we are very interested in working on Indian market. So I would like to pass the word to Ishan, I guess, because my introduction won't be long. Thank you, Anton, for your support. Now, we will start the demonstration of the product. So I will request Ishan. Mr. Ishan, please take over. Good afternoon, everyone. My name is Ishan Prakash. I take care of the StaffCop business in India. And Tech Monarch is a regional distributor who is taking care of the installation part, demonstration part of the product. So first, let me give you a small brief about the product, what the product is. Basically, it's totally a client server based architecture solution where we have one server which can be implemented anywhere. Like if you want to deploy the server in any cloud service provider, you can deploy. If you want to deploy it in a VM, you can deploy, or in a physical machine. So it's upon us where we want to deploy the server, right? Then we have agent for all the operating system like Windows, Mac, and Linux. We support full functionality in Windows, then 90% functionality in Linux, and you can say 50% functionality in Mac operating system. So whenever you install the StaffCop server, you can access it by using any browser, just like I'm using this Safari browser. And this is a live environment. I have taken a special permission to show you the live environment of the user, how it's look like. So whenever we open the console, we need to put the credentials, what we have set. I'll not go into deep. I'll just give you an overview of the product, like how the filters work, how the report looks like, and how we can use how we can create a filter for alerts, right? So if you can see here, this is our dashboard. और अगर आपके पास में कोई भी questions हैं बीच में, अगर आपको आता है तो you can ask. Otherwise, you can ask in a Q&A session, right? So if you can see, this is our dashboard. So in dashboard, we have two parts. First one is filter. If you can see on the left side, these all are filters, just like we use in Excel to find a specific information, right? Then in second part, we have consolidated reporting for all the users, where you will get the login, logout timings, active time, downtime, productive time, unproductive time, right? First, let me quickly show you the configuration part very quickly so that you can get some idea what information we capture from the end user machines, right? I think server is running slow. Just hold on. Yes. Now, if you can see, ये configuration का part है पूरा. On the left side, you can see these all component works on the user machine to gather the information. मैं quickly सारे components को cover करता हूँ. Like users monitoring में हम लोग login logout time we capture, application control में we capture the application activity, even we control the applications also, even we get the information about the software or software installation and uninstallation by the users. Then we users activity, we track the users active time or downtime. Then we have screenshots part. अगर आपने और भी प्रोडक्ट्स देखे होंगे तो स्क्रीनशॉट में
सारे प्रोडक्ट्स में इंटरवल बेस्ड रहता है, बट वी हैव 2 more ऑप्शंस टू टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम द यूजर्स मशीन. लाइक आपने देखा होगा ये इंटरवल बेस्ड है, वी हैव दैट पार्ट ऑल्सो, बट हमारे पास में एक ये ऑप्शन भी है स्क्रीनशॉट्स ऑन चेंजिंग विंडो फोकस. इट मीन जब भी यूजर की स्क्रीन चेंज होगी, मीन्स अगर वो टैब ओपन कर रहा है या कोई डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा है या कोई एप्लीकेशन ओपन कर रहा है, तो जितनी बार भी स्क्रीन चेंज होगी, इट विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द यूजर्स मशीन. देन वी हैव स्पेशल मॉनिटरिंग फॉर स्क्रीनशॉट. लाइक इफ यू डिफाइन एनी ऑफ दिस, अगर आपको लगता है मैं जो भी ऐप डिफाइन करता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि teams.exe आई हैव डिफाइंड, या मैं कोई यूआरएल डिफाइन कर दिया और यूजर उनको यूज अगर खोलता है तो स्क्रीनशॉट्स आना चाहिए. तो वी हैव 3 पार्ट्स. तो आपके पास में ऑप्शन ज्यादा होते हैं स्क्रीनशॉट्स लेने के. देन कीबोर्ड एंड क्लिपबोर्ड से, कीबोर्ड क्लिपबोर्ड में हम लोग यूजर्स की की प्रेस को भी मॉनिटर करते हैं. देन वी मॉनिटर द पासवर्ड्स ऑल्सो इफ यू वांट टू मॉनिटर. सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको यूज करना है यू कैन एनेबल इट, अदरवाइज यू कैन डिसेबल इट. देन वी ऑल्सो ट्रैक द कॉपी एंड पेस्ट डेटा बाय द यूजर, राइट. देन वी ट्रैक द वेब एक्टिविटी. यूजर कौन सी वेबसाइट पे कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, क्या ब्राउजर पर सर्च कर रहा है. देन वी हैव controlling part also where you can block the websites also. अगर आपको कोई वेबसाइट को ब्लॉक करना है, you just need to put the URL here that will be blocked on the user's machine, right. Then we have email messengers. Like अगर आपको emails track करनी है कि who has sent the email, to whom he has sent the email and what is the email, so you'll get the everything. Like आपको उसका recipient email ID पता चलेगी, subject line, mail body and attachment also, so you'll get the shadow copy of the attachment also. Then instant messengers. So instant messengers में Teams, Skype, Telegram, Google Drive. So इनमें आपको chat activity monitor होती है text form में, not in screenshot form. So you will get the chat activity, right? Then in files we have 2 parts, like file system activity, जिसमें आपको ये पता चलता है किस यूजर ने कौन सी फाइल्स को डिलीट किया, मॉडिफाई किया, क्रिएट किया, ओवरराइट किया, रीनेम किया और किस एप्लीकेशन को यूज करके किया. सो you'll get the complete detail with the complete path also. देन ये जो रेस्ट आप देख रहे हैं, इसके मीनिंग, अगर यूजर कोई भी फाइल्स को अपलोड कर रहा है, पेन ड्राइव में भेज रहा है, मेल पे भेज रहा है अटैचमेंट के थ्रू, सो यू विल गेट द कंप्लीट शैडो कॉपी ऑफ दोस फाइल, जो कि आप सर्वर पे देख सकते हैं किस यूजर ने कौन सी फाइल किस मीडियम के थ्रू बाहर भेजी है. देन वी हैव डिवाइस कंट्रोल ऑल्सो, लाइक आप पेन ड्राइव वगैरह को अलाउ ब्लॉक कर सकते हैं इसमें. देन प्रिंटर्स में आप प्रिंट एक्टिविटी मॉनिटर कर सकते हैं, किस यूजर ने कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिंट किया है, आप उसकी शैडो कॉपी भी आपको मिल जाएगी. Then webcam sound recording, it's upon you whether you want to use this components or not. Then we have remote control, like you can use view the user's live monitor, and you can view 15 monitors at a single panel. So not only the viewing part, we have controlling part also, like you can take the direct control of the user's machine. So जब तक आप यूजर्स के मॉनिटर को व्यू कर रहे हैं, यूजर्स को पता नहीं चलता है, बट जैसे ही आप कंट्रोल लेते हैं तब यूजर्स को पता चलता है, बिकॉज माउस विल मूव, राइट. देन वी हैव स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डिंग, जिसमें आप जस्ट लाइक स्क्रीनशॉट्स में हमें इमेजेस फॉर्म आती है, स्क्रीन वीडियो रिकॉर्डिंग में हमें MP4 वीडियो आ जाएगी यूजर्स के स्क्रीन की. देन वी हैव इन्वेंट्री, जिसमें हमें यूजर्स की मशीन में हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, उसका पता चलता है. देन प्रेजेंस इन द वर्क प्लेस में इट गिव्स यू द ऑप्शन टू रन एजेंट इन हिडन और विजिबल मोड. ये आपके ऊपर, आपको एजेंट हिडन मोड में चलाना है, विजिबल मोड में चलाना है. और आपको अगर डेटा कलेक्ट करना है इन बिटवीन द ऑफिशियल आवर्स, सो यू कैन डिफाइन कि डेटा सिर्फ ऑफिशियल आवर्स के इन बिटवीन ही कलेक्ट होना चाहिए. सो वो आप एनेबल डिसेबल कर सकते हैं. देन अगर आपके पास में लिनक्स सर्वर्स हैं, तो आप उसमें क्या कमांड्स यूजर्स दे रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन. देन वाईफाई नेटवर्क्स, आपको कोई SSID को ब्लॉक करना है कि यूजर इस वाईफाई से कनेक्ट हो या इस वाईफाई से कनेक्ट ना हो, वो आप डिफाइन कर सकते हैं. देन वी हैव अ स्मॉल पार्ट ऑफ DLP वेयर यू कैन क्रिएट द रूल्स. आप उसमें रूल्स क्रिएट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कीवर्ड्स एंड फाइल एक्सटेंशन बेसिस. देन वी हैव फाइल स्कैनर. फाइल स्कैनर में आप ये जो एक्सटेंशंस देख रहे हैं, PDF डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट, पावरपॉइंट, एक्सेल, सो आप किसी भी यूजर की मशीन में जो ये फाइल्स अगर रिसाइड करती हैं इन एक्सटेंशन से रिलेटेड किसी भी ड्राइव में, तो उसके अंदर क्या कंटेंट है वो आप सर्वर पे ही रीड कर सकते हैं. देन बल्क फाइल कॉपिंग में आप डिफाइन कर सकते हैं कि यूजर इतने ही नंबर ऑफ फाइल्स को कॉपी कर सकता है और ये उसकी साइज लिमिट है, ये आप डिफाइन कर सकते हैं. मॉनिटरिंग एक्सक्लूजन में एक्सक्लूजन रूल्स क्रिएट कर सकते हैं कि मेरे को कोई पर्टिकुलर यूजर की पर्टिकुलर एप्लीकेशन या वेबसाइट को मॉनिटर नहीं करना है. दिस वी कैन डिफाइन. देन वी कैन सेट द पासवर्ड फॉर द एजेंट, और जो भी मैंने सेटिंग करी है मैं किन यूजर्स पे लगाना चाहता हूँ. सो इसमें हम लोग डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं डिफरेंट सेट ऑफ यूजर्स के लिए. तो ये कॉन्फ़िगरेशन पार्ट था. तो इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन यूजर की मशीन से कैप्चर करते हैं.
अब हमें अगर इंडिविजुअल वाइज चीज़ें देखनी है कि हमें सिर्फ स्क्रीनशॉट्स देखने हैं, मेल इन्फॉर्मेशन देखनी है, सो मैं ये हमारे पास कैलेंडर है, यहाँ से आप yesterday report, last 7 days report, 30 days, week, month, year, or you can define the date, और now we have the option कि आप पर्टिकुलर टाइम स्लॉट भी डिफाइन कर सकते हैं। आपको अगर पर्टिकुलर डे में पर्टिकुलर टाइम स्लॉट की रिपोर्ट देखनी है तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर कल की रिपोर्ट देखनी है तो आई क्लिक ऑन द 27 जुलाई। अब अगर मेरे को इंडिविजुअल कंपोनेंट वाइज रिपोर्ट देखनी है तो आई गो टू इवेंट टाइप और मैं यहाँ से देख सकता हूँ। जैसे मेरे को स्क्रीनशॉट्स देखने हैं, सो मैं स्क्रीनशॉट मेरे राइट साइड में सारे डिस्प्ले हो जाएंगे, ये मेरे सारे स्क्रीनशॉट डिस्प्ले हो रहे हैं, राइट। मेरे को फिल्टर आउट करना है, मैं फिल्टर कर सकता हूँ कंप्यूटर नेम से या अकाउंट नेम से कि मेरे को इस पर्टिकुलर यूजर के ही स्क्रीनशॉट देखने हैं, आई विल फिल्टर इट आउट, वो राइट साइड में आपको डिस्प्ले हो जाएगी। अब इस पर्टिकुलर यूजर के ही इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है कि इस स्क्रीनशॉट से रिलेटेड। ऐसे ही मेरे पास में ऑप्शन है कि मैं कोई भी कंपोनेंट की डिटेल देख सकता हूँ, जैसे मेल की रिपोर्ट, किसने किसको मेल भेजी है, क्या भेजी है। मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ फुल स्क्रीन करके। अगर आप देखेंगे तो इसमें सेंडर ईमेल आईडी, रेसिपिएंट ईमेल आईडी, सब्जेक्ट लाइन और बॉटम में आप देखेंगे तो उसकी पूरी मेल बॉडी आ जाती है। कोई भी रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी रिपोर्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको स्क्रीनशॉट मेल दिखाया, ऐसी फाइल ऑपरेशन है, कीबोर्ड पे है, वेब एक्टिविटी है, ये कंप्लीट है, और वाइस वर्सा भी आप कर सकते हैं कि आपको अगर पता है कि मेरे पास ये फाइल नेम है, मुझे चेक करना है इस फाइल पे किन यूजर्स ने काम किया, यू गो डायरेक्टली टू द फाइल पार्ट। और आपको अगर फाइल नेम पता है, जैसे मेरे को ये चेक करना है इस यूजर पे क्या, इस फाइल पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो मैं फाइल सेलेक्ट करूंगा, राइट साइड में मेरे को इस पर्टिकुलर फाइल नेम पे सारी चीजें पता चल जाती है कि इस फाइल पे किन किन यूजर्स ने काम किया और क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया है। ये सिर्फ मैं फाइल से रिलेटेड बता रहा हूँ, ऐसे ही आप मैसेजिंग से रिलेटेड, मेल से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड चीजें चेक कर सकते हैं कि जैसे मेरे पास इसमें वेबसाइट की डिटेल आ गई कि लिंक्डइन चलाया गया है 27 को, मेरे पास इतने इवेंट्स है, किन यूजर्स ने चलाया, आई क्लिक ऑन इट, मेरे पास में राइट में इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि ये यूजर्स ने लिंक्डइन चलाया है। मेरे को ग्राफिकल फॉर्मेट में भी इसमें रिपोर्ट आ जाती है कि मेरे को अगर चेक करना हो कि लिंक्डइन किन यूजर्स ने चलाया, तो आई हैव दैट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आल्सो। इससे मेरे को पता चलता है इन यूजर्स ने लिंक्डइन चलाया, कितने कितने टाइम तक चलाया, ये सारी चीजें। अब आते हैं कंसोलिडेटेड रिपोर्टिंग्स पे। अगर आपको रिपोर्ट चेक करनी है कि एक कंबाइंड रिपोर्ट फॉर ऑल द यूजर्स के कितने यूजर्स प्रोडक्टिव थे, कितने नहीं थे, देन वी हैव दिस कंबाइंड रिपोर्ट। Here you can see we have one strip bar, सारे यूजर्स के नेम आ रहे हैं, we have one strip bar. So strip bar में you can see 3 color bar, green, red, gray. Green indicates productive work, red indicates unproductive work, gray indicates neutral work. We have the option to set which application and website to go in which category. ये हम लोग भी define कर सकते हैं, otherwise software will decide according to its intelligence के depending upon the work done by the user. सो गोइंग फॉरवर्ड आप ये देखिए, स्टार्ट ऑफ वर्क मींस यूजर ने मशीन ऑन कितने बजे करी है। बाय शेड्यूल हम लोग इसमें शेड्यूल सेट कर सकते हैं, जैसे हमने सेट किया हुआ 9 to 6, सो इट मींस 9 वर्किंग आवर्स, ये हमने सेट किया हुआ है। अगर आप देखेंगे करना, वो 9:36 पे लॉग इन किया है, फर्स्ट लॉग इन अ डे। एंड ऑफ वर्क मींस लास्ट लॉग आउट ऑफ अ डे, सो इट मींस टोटल टाइम मेरी मशीन ऑन जो रही है वो 9 hours 22 minutes के लिए रही है। ओवर टाइम मैंने किया 22 मिनट्स। अगर मैं इसे कैलकुलेशन करता हूँ कि मेरे पास 9 वर्किंग आवर्स थे, मैंने टोटल कितना काम किया, या मशीन कितनी देर ऑन रही, मींस कितनी एक्टिव, मींस कितनी देर में एक्टिव रहा उस मशीन पे। इनएक्टिव मींस आइडियल, कि ये यूजर इतने टाइम आइडियल कंडीशन में रहा। अब आप देखेंगे 5 और 58 मिनट्स से में 5 और 45 मिनट्स मेरा यूजर प्रोडक्टिव रहा। इट मींस उसने या तो अनप्रोडक्टिव काम किया है या न्यूट्रल कैटेगरी में गया है। जैसे इसमें दिखा रहा है इनइफेक्टिव मींस अनप्रोडक्टिव, केस यूजर ने अनप्रोडक्टिव काम नहीं किया है। हम वो बार्स देख के भी देख सकते हैं, बिकॉज कोई भी रेड बार शो नहीं हो रहा है। अगर हम वही सेकंड यूजर की बात करते हैं तो इसमें एक रेड बार शो हो रहा है, वो भी 2 PM के स्लॉट के नीचे, यानी इसने 2 PM के आसपास कोई अनप्रोडक्टिव वर्क किया है, और वो हमें रिपोर्ट में भी दिख रहा है कि इसने अनप्रोडक्टिव वर्क 3 मिनट 33 सेकंड्स में कुछ किया है। आपको अगर डीप डाउन जाना है, आप उस यूजर पे क्लिक कर सकते हैं, आप एकदम डीप डाउन जा सकते हैं कि यूजर ने कौन सी कैटेगरी पे काम किया। जैसे मेरे को यहाँ पता चलता है ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म उसने चलाया है, और स्क्रॉल करते हैं टॉप एप्लीकेशंस, और स्क्रॉल कर सकते हैं और टॉप वेबसाइट आपको मिल जाती है। अब मेरे को यहाँ पता चलता है कि यूजर ने यूट्यूब चलाया है 3 मिनट्स के लिए। और डीप डाउन जाना है तो यू कैन माउस ओवर इट, और व्यू फैक्ट से आप उसमें एग्जैक्ट डिटेल तक जा सकते हैं। तो हमारे सॉफ्टवेयर में यू कैन डीप डाउन टू अ सर्टेन लेवल कि जिसमें आपको पता चलता है कि यूजर ने क्या चलाया है। आप देखेंगे तो यूजर ने जो चलाया है उसका पूरा लिंक भी आपको मिल गया है।
हमारे पास में कंबाइंड रिपोर्ट्स हैं, हमारे पास में आइडल टाइम की रिपोर्ट है। जैसे इसमें यहाँ पे मेरे को ये पता चलता है कि ये मेरा यूजर 3 hours 12 minutes आइडल था 27th को। मेरे पास में रिपोर्ट है जिसमें वी गेट टू नो के कौन कौन से वो टाइम स्लॉट्स है कि ये टाइम पे वो आइडल कंडीशन में था। देन वी हैव अ रिपोर्ट जिसमें आपको अगर एवरेज परफॉर्मेंस चेक करनी है यूजर की, कि मेरा यूजर लास्ट 7 days में कितने % प्रोडक्टिव रहा। देन वी हैव दैट रिपोर्ट ऑल्सो। देन अगर मैं बात करूं कोई भी अलर्ट्स की, या आपने देखा होगा दूसरे प्रोडक्ट्स में भी कि उनके जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होती हैं, आप बस वही यूज कर सकते हैं। अब उसमें जरूरी नहीं है कि आपका यूज केस फुलफिल हो रहा हो, बिकॉज एवरी कंपनी इज हैविंग डिफरेंट यूज केसेस। आपको जैसे अलर्ट चाहिए हो कि अगर मेरे यूजर ने ये डेटा यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया तो मुझे अलर्ट आना चाहिए। सो ऐसे यूज केस कुछ भी हो सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट में आप वो यूज केस के अकॉर्डिंगली अलर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको जैसे कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि सपोज मुझे अलर्ट आना चाहिए अगर मेरे यूजर्स दूसरे अपनी जीमेल पे मेल भेजते हैं तो मुझे अलर्ट आ जाए, ये एक एग्जांपल है। या अगर मेरे यूजर्स टीम्स पे चैट कर रहे हो, चैट में वो इस कीवर्ड का यूज कर रहे हैं तो मुझे अलर्ट आना चाहिए। ऐसे यूज केस कुछ भी हो सकता है। हम लोग इसमें वो अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं विद इन अ मिनट। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट के यूएसपी की अमंग अदर कॉम्पिटिटर्स। पहली बात, हमारा जो इसका सर्वर है वो लिनक्स बेस्ड है। इफ द सर्वर इज लिनक्स बेस्ड, ये कॉस्ट सेविंग पार्ट है। बिकॉज अगर आप विंडोज बेस्ड सॉफ्टवेयर लेते हैं तो यू नीड अ विंडोज सर्वर लाइसेंस। देन इफ यू टॉक अबाउट द डेटाबेस, देन यू आल्सो नीड अ डेटाबेस लाइसेंस। बट इन आवर केस आवर server is linux based, we don't need a license. Then we use PostgreSQL, which don't need a license. और अगर आप if you compare the specification of the server, अगर मैं विंडोज मशीन के साथ कंपेयर करता हूं तो हमारी जो स्पेसिफिकेशन है वो सीधे हाफ हो जाती है, सर्वर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो देन वी हैव एजेंट फॉर ऑल द ओएस। अगर आप साइज की बात करें एजेंट की, तो वी हैव 30 MB एजेंट ओनली। और अगर मैं रिसोर्स कंजप्शन की बात करता हूँ तो टॉप 15 प्रोसेस में भी आपको हमारा प्रोडक्ट का एजेंट नहीं मिलेगा कि ये रिसोर्स ले रहा है, मशीन स्लो डाउन कर रहा है। तो एक तो यूएसपी ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो जो सर्वर है वो लिनक्स बेस्ड है। सेकंड है कि वी गिव परपेचुअल लाइसेंस, मींस वी हैव सब्सक्रिप्शन बेस्ड लाइसेंसेस, बट we believe that will give you a perpetual license with a better pricing अगर आप दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करते हैं तो। थर्ड, वी हैव कस्टमाइजेशन, लाइक आप इस कंसोल के मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटर्स भी बना सकते हैं। जैसे आपके कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हर एक डिपार्टमेंट में यूजर्स हैं, और आपको डिपार्टमेंट हेड को कंसोल का लॉगिन देना है, तो आप उनके लॉगिन्स क्रिएट कर सकते हैं विद सेट ऑफ राइट्स के उनके लॉगिन पे सिर्फ उनके यूजर्स ही दिखने चाहिए, और यही राइट्स मैं देना चाहता हूं, तो आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंगली रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं इसमें। यूजर मैनुअल इसी में इनबिल्ट है, विच हैव एवरीथिंग लाइक इंस्टॉलेशन, अनइंस्टॉलेशन, हाउ टू यूज द प्रोडक्ट, रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होती हैं, रिपोर्ट्स में फिल्टर कैसे यूज करते हैं, तो यू विल गेट द एवरीथिंग। देन आप यहीं से टिकट भी जनरेट कर सकते हैं सपोर्ट में जाके। अदरवाइज वी हैव a local support also. You can call the distributor, you can call the Tech Monarch, you can directly send a mail to OEM also for the support part. Then they have chat support on the Telegram कि आप डायरेक्टली अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो यू कैन डायरेक्टली put anything on Telegram, they will support you. So I have one more thing to say. Our licensing starts from 5 license and you can add 1 license also later on. So I think मैंने अपना part cover कर दिया। If you have any questions, or Vijit, do you have anything to say, or we can start the Q&A session? Thanks, Ishan. I will take over from here then. Okay. This was the demo for the StaffCorp Employee Productivity Monitoring System event. So if you have any question, we can start Q&A session. If you want to test the software, it's hardly take 15 minutes to deploy the server. If we talk about the client installation, so we have a MSI installer. So
it depends upon you whether you want to deploy it manually or you want to deploy it remotely. So we have both the option. And for the licensing part, we have subscription based license and perpetual based license. And suppose अगर आपके पास में एक मशीन पे 2 यूजर्स क्रिएटेड हैं और 2 यूजर साइमल्टेनियसली काम करते हैं, तो वी हैव अकाउंट बेस्ड लाइसेंसेस के उसमें आपको 2 यूजर लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। कॉस्टिंग की बात अगर करते हैं तो वी आर वेरी एग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्लैब बेस्ड कि आपको कितने यूजर्स की रिक्वायरमेंट है। आप अपनी अपॉर्चुनिटी टेक्मोनार्क के साथ शेयर कर सकते हैं, दे विल शेयर विद द प्राइसिंग, बट आई एम प्रीटी श्योर दैट वी आर वेरी कॉम्पिटिटिव इफ यू कंपेयर इट विद अदर OEMs in the market like TerraMind or Time Doctor, or there are so many products there in the market. So yes, demo available है, ISO इमेज है विच यू कैन डिप्लॉय, और ज़रूरी नहीं है डेमो के लिए हमें सर्वर बेस्ड मशीन चाहिए। आप नॉर्मल Win10 Pro मशीन पे भी इसका सर्वर को डिप्लॉय कर सकते हैं Hyper-V पे, कोई भी वर्चुअल सॉफ्टवेयर यूज करके, और हम लोग डेमो स्टार्ट कर सकते हैं। और डेमो जो अवेलेबल रहता है वो 5 यूजर्स के लिए रहता है, 14 डेज के लिए बाय डिफॉल्ट। लाइसेंस जो है हमारे पास में वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। ईयरली मींस ईयरली सब्सक्रिप्शन है, एंड परपेचुअल। सो परपेचुअल मींस के इट्स अ वन टाइम परचेज प्रोडक्ट which have a small amount of AMC which start from the next year onwards, right? Yes, ये जो सॉफ्टवेयर है ये हिडन मोड में चलता है, जो कि आपको प्रोग्राम फाइल्स में मेंशन नहीं होगा, टास्क बार में मेंशन नहीं होगा, कंट्रोल पैनल में भी मेंशन नहीं होगा, और इसमें पीसी की परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं आएगा बिकॉज इट्स अ 30 MB एजेंट। मैं वही बता रहा था कि यूजर को पता भी नहीं चलता है कि कोई सॉफ्टवेयर ऐसा रन कर रहा है। और जो आपने बोला है कि इनसाइडर थ्रेड्स को अगर हमें पकड़ना है, सो उसके यही वेज होते हैं कि यूजर ने अपनी जीमेल पे कुछ डेटा अपलोड कर दिया कंपनी का, या दूसरे डोमेन पे मेल भेज दी पर्टिकुलर एक्सटेंशन की फाइल। सो वही मैंने बताया कि हमारे प्रोडक्ट में आप कोई भी टाइप का अलर्ट को बना सकते हैं, इसलिए हमारा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल करता है होता है, क्योंकि जो मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स जो हैं आप उन्हीं को यूज़ कर सकते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक कंपनी का यूज़ केस उससे फुलफिल हो। सो आपका जैसा यूज़ केस है, आपका जैसा डेटा का कंसर्न है कि मेरा डेटा बाहर ना चला जाए, तो आप उसमें अलर्ट बना सकते हैं। चाहे वो मेल पे कोई भेज दे, या कोई अपलोड कर दे, या कोई पेन ड्राइव में भेज दे, या कोई गूगल ड्राइव या वन ड्राइव में डेटा भेज दे, तो डेटा तो कैसे भी भेज सकता है। आपको अलर्ट बनाने पड़ेंगे, और अलर्ट इसमें हार्डली 1 मिनट या 2 मिनट्स में अलर्ट आप बना सकते हैं। लिनक्स सिस्टम सी इसकी ISO बनी हुई है, ISO फाइल है which already have Linux OS and staff cop in it, so you just need to deploy, or it hardly take 10 to 15 minutes to deploy the server. आपको सिर्फ डिप्लॉय करना है उसको। डेटा जो रहेगा, जहाँ पे भी सर्वर आप बनाएंगे, डेटा सारा उसी मशीन पे रहेगा। बहुत सारे कंपनीज का कंसर्न रहता है कि अगर मैं डेटा सर्वर पे रख रहा हूँ तो कहीं से एक्सेस तो नहीं हो जाएगा। सो उस केस में मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारे कंपनीज ने जो सर्वर है वो नेटवर्क पे नहीं है, वो मीन्स उसमें इंटरनेट नहीं है। सो हमने उसमें ऑफलाइन लाइसेंस भी दिया हुआ है, तो डेटा बिल्कुल प्रोटेक्ट रहेगा आपका, आप ही के प्रेमिसेस में रहेगा जहाँ भी आप सर्वर डिप्लॉय करेंगे, चाहे उस सर्वर पे इंटरनेट हो या ना हो। टिकट सिस्टम इसमें अवेलेबल है, कंसोल में ही टिकट सिस्टम अवेलेबल है। आप उसमें टिकट क्रिएट कर सकते हैं और आपको 24 आवर्स के अंदर उसका रिप्लाई मिल जाएगा। अदरवाइज आपको अगर नॉर्मल कोई सपोर्ट चाहिए, यू कैन पुट इट इन टेलीग्राम, और आपको वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अदर यू कैन कॉल distributor on us or Tech Monarch. They will help you out. Does the software provide inside analytics? See, our product is actually doing that only, जिसमें आपको पूरी प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट मिल जाती है। सो अगर आपको लगता है कि ये मेरा यूज़र अनप्रोडक्टिव जा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द रिपोर्ट्स के इसका प्रोडक्टिव टाइम बहुत कम जा रहा है, अनप्रोडक्टिव टाइम ज़्यादा जा रहा है, सो यू कैन डू द फोरेंसिक्स ऑल्सो। वी हैव फोरेंसिक पार्ट ऑल्सो वेर यू कैन डीप डाउन टू अ सेकेंड रिपोर्ट ऑल्सो। लाइक आप अगर 1 मिनट में भी देखना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर मिनट में भी यूज़र ने क्या किया है, तो वी हैव दैट रिपोर्ट ऑल्सो। और हमारे पास में जो सिंगल यूज़र रिपोर्ट भी है, कंबाइंड रिपोर्ट भी है, डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट्स भी हैं, तो आप बना भी सकते हैं।
हार्डवेयर की अगर मैं बात करता हूँ तो बेसिक चाहिए होता है, कोई ज़्यादा हार्डवेयर नहीं चाहिए होता है और ज़रूरी नहीं है कि हमें सर्वर मशीन ही चाहिए। अगर आपके 300-400 यूज़र्स हैं, सो आई विल रिकमेंड कि यूज़ द सर्वर मशीन, बिकॉज़ उसमें जो मदरबोर्ड और रिसोर्स रहता है वो ज़्यादा कम प्रोसेसर कंप्यूट कर सकता है। आप अगर 100, 150, 200 यूज़र्स तक अगर देखना चाहें तो यू कैन कंसिडर कोर i5 नॉर्मल मशीन ऑल्सो, बट ये रहेगा कि आप एसएसडी यूज़ करें उसके अंदर। ये जो सॉल्यूशन है ये किसी भी टाइप के यूज़र में डिप्लॉय किया जा सकता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनके यूज़र्स वर्ल्ड वाइड हैं। कुछ इंडिया में बैठते हैं, कुछ यूरोप में बैठते हैं, कुछ यूएस में बैठते हैं, सबका डेटा फेच होता है। रिटेंशन पीरियड आप सेट कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्टोरेज यू प्रोवाइड। आपने ज़्यादा स्टोरेज प्रोवाइड करी, वो ज़्यादा मंथ्स के लिए डेटा रिटेन रहेगा। अदरवाइज़ जो इसके मैनुअल में उसमें डिफाइन किया हुआ है, अगर आपके इतने यूज़र्स हैं तो एक एवरेज लिया हुआ है कि इतना हार्ड डिस्क होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ उसमें ऑटो डिलीशन का लगा होता है, अगर आपकी हार्ड डिस्क 90% फिल हो गई है, सो द ओल्डर डेटा विल गेट डिलीटेड ऑटोमेटिकली। वो डिफाइन कर सकते हैं हम, वो डिफाइंड ऑलरेडी है जिसको कि हम चेंज भी कर सकते हैं। और जब भी देखिए, हमारा जब भी एजेंट डिप्लॉय हो जाता है मशीन पे, यूजर की मशीन पे, वो अपना काम करता रहेगा, चाहे वो सर्वर से कनेक्टेड हो या ना हो। अब मान के चलिए मेरे पास मशीन है, मेरे इसमें एजेंट डाला हुआ है, सर्वर आपका स्विच ऑफ पड़ा है, तो जब तक सर्वर स्विच ऑफ पड़ा रहेगा डेटा मेरा लोकली स्टोर होता रहेगा। और जब भी मेरा कनेक्शन अगर सर्वर से बनता है मशीन का, तो सर्वर ऑटोमेटिकली वो पुराना डेटा और करंट डेटा सारा फैच कर लेगा। उसमें ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट होना चाहिए या नहीं। इंटरनेट होगा तो आपका सर्वर सेम टाइम पे डेटा इन्फॉर्मेशन फेच कर लेगा यूज़र की मशीन से। क्लाइंट रिमोट डेस्कटॉप, इसमें आप यूज़र की मशीन का रिमोट ले सकते हैं और कंट्रोल भी ले सकते हैं। कंट्रोल लेने के बाद उसमें आप क्लिक कुछ भी कर सकते हैं टेक्निकल सपोर्ट के लिए। If you have any more question regarding installation, we will be able to help you. So if you have any question, you can just email us and we will be able to respond to you shortly. मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये रहेगी कि आप एक बार प्रोडक्ट टेस्ट ज़रूर करिए, बिकॉज़ देखने में प्रोडक्ट सब एक जैसे लगते हैं कि सब में सेम फीचर्स है, बट आई एम श्योर अबाउट इट कि जब आप प्रोडक्ट टेस्ट करेंगे तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि हमारा कितना डीप डाउन लेवल तक इंफॉर्मेशन फाइंड आउट हो जाती है, जो कि किसी दूसरे प्रोडक्ट में अवेलेबल नहीं है। Okay, that's it, guys. Thank you for today. Now we are closing the event. Have a nice day.